Hi everyone, so welcome back to my channel, and this is a pick a card reading for 1111 portal. So now today is the 1111 portal, okay, and it is a big day. It is it's the best day to manifest. You can manifest whatever you want to. All right, just make sure that you are clear with your thoughts. Today is a big date, okay. Do whatever you can do. If if you can go and donate, if you can uh, do something for the welfare of the society, do that. You can do meditation. Just do something positive today, all right, because it will definitely help you to manifest your desires, your dreams. So let's start. So this is group number 1 and this is group number 2, the one with this rose quartz, okay. This is group number 1, and the moonstone, this is group number 2. So you can take your time, and yeah, let's start for group number 1. मैंने मैसेजेस देखे नहीं हैं. आई हैवंट सीन द कार्ड्स. जैसे शफल किया मैंने रख दिया. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. First, you got memories, cherish memories of loved ones. Wow, you got the world card. You got Paul the Venetian, that is experiencing grace, and I think this is the twin flame pair as well. All right. Then you got composure and trust the universe. Let me just keep the cards and then we'll see what do we have for you guys. Okay, then you got man holding a coin. Wow, goddess of the moon, heart chakra, and door to personal healing and happiness. And last May we got 5 of cups, the moon, 5 of wands. 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. हो सकता है आप लोगों को बटरफ्लाइज दिख रहे हों, हो सकता है आपको द वर्ड चेंज, मे बी यू पीपल आर अट्रैक्टिंग चेंजेस इन योर लाइफ, ओके. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं वो सब एंड होने वाली हैं आप लोगों के लिए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1111 पोर्टल. सो फर्स्ट इट सेज शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव are coming to you. काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं that you people are attracting real love, okay, like genuine passionate love which has compassion and everything. And this is for those who have been healing themselves, those who have been loving themselves unconditionally. क्योंकि यहाँ पे you got man holding a coin and you got the goddess of the moon, okay. Now it doesn't it's not a gender specific reading, तो जैसा आपको resonate करता है आप वैसे ले सकते हो, be it whether you are a masculine or you are a feminine, okay. Just take how as it resonates with you. So आप में से काफ़ी लोगों के लिए I think now your heart chakra is going to open up for someone. This is your divine counterpart for sure, because you got the Paul Venetian and you got man holding a coin. all right, तो आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, ओके. ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आएंगे, बिकॉज अभी तक यू गाइज वर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अपनी हीलिंग पे काम करना या फिर अपने ऊपर फोकस करना, अपने करियर पे फोकस करना, इन सब चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है. लेकिन अब
ये चीज़ें जो होंगी, नाउ यू मे हैव टू शेयर योर लव विद समवन एंड आई थिंक यू विल यू वुड ग्लैडली वुड वांट टू डू दैट. लेकिन बिफोर दैट, बिफोर दिस पर्सन अराइव्स, आई थिंक आप में से कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को लेके या किसी ना किसी पर्सन को लेके. एंड दिस कुड बी मेमोरीज. हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, ठीक है, या फिर या तो आपने किसी को हर्ट किया है या आपको किसी ने हर्ट किया है, ठीक है. तो इन पास्ट मेमोरीज को यू विल हैव टू लेट गो, बिकॉज ये जो पास्ट है इसको पास्ट में ही रहने देते हैं. अगर किसी चीज़ का गिल्ट है, जस्ट ट्राई डूइंग फॉरगिवनेस, ठीक है. जस्ट राइट अ लेटर, ठीक है, एक फॉरगिवनेस लेटर लिखो एंड देन जस्ट बर्न दैट लेटर. ओके, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिलीज दैट गिल्ट. ऑल राइट, बिकॉज इस गिल्ट की वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. और हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे या इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो इस गिल्ट से या इस इशू से. एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बट नाउ इट्स टाइम दैट यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज बेटर डेज आर डेफिनेटली कमिंग. ओके, आप लोगों की एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है. एंड काफ़ी लोग हो आप लोग जो स्पिरिचुअल हो, सो आई थिंक यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग योर नॉलेज टू द वर्ल्ड. आप पूरे आप वर्ल्ड के साथ, मतलब आपके जितने भी, आपकी जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है या आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ स्टार सीड, ओके, इफ़ यू आर एन एम्पैथ, तो इन लोगों का क्या होता है, यू पीपल आर लाइक मैसेंजर्स ऑन द अर्थ, ठीक है, एक एंजल के फॉर्म में होते हो. तो आप लोगों को तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करना ही है. सो यू हैव अ पर्पस. ऐसा नहीं है यू जस्ट हैव अ सोल पर्पस, बट यू हैव अ लाइफ पर्पस. सो और हो सकता है कि ये आपका और आपके पर्सन साथ में आप लोगों का एक कोई लाइफ पर्पस हो. फॉर सम ऑफ यू आई थिंक यू विल बी ट्रैवलिंग एज वेल कुछ टाइम. अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक ये भी हो सकता है दैट यू पीपल विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ इवन मोर. कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं, शायद से आप लोग इतना ज़्यादा अपने हार्ट में बिलीव नहीं करते हो, अपने हार्ट चक्र को इतना ओपन अप नहीं करते हो ईजिली. तो अब वो चीज़ स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है. यू विल स्टार्ट ओपनिंग अप योर सेल्फ to love. Okay, you will start opening up yourself for personal healing and happiness. And you do have chances to travel as well. ओके, काफ़ी लोग हैं जिनके चांसेस हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर्पस में ही है. देन यू गॉट कंपोजर एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स. अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके डाउट हो रहा है, सो डेफिनेटली यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड डू ग्राउंडिंग. जितना ग्राउंडिंग कर सकते हो इतना ग्राउंडिंग करो, बिकॉज आई डू फील ईदर यू पीपल आर फीलिंग अ बिट numb or overwhelmed, or maybe there's a lot on your mind, too many thoughts, too many assumptions. So उन सब चीज़ों को let go करना है. You need to let go of all this. Okay, and how can you do that? You need to meditate. You need to, if you meditate, okay, just do something that will help you to ground you, because यहाँ पे grounding बहुत ज़्यादा important है. If you don't meditate, eat vegetables that grow underground. Okay, या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू, थोड़ा सा वॉक कर सकते हो ग्रास पे, ठीक है. बेयर फुट बैठो, बेयर फुट चलो, ठीक है. थोड़ा सा मतलब ऐसे करो जिससे आप मदर अर्थ के साथ आप टच में रहो, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज तभी आपके अंदर एक वो कंपोजर वाली फीलिंग आएगी. अदरवाइज़ वो कॉन्फ्लिक्ट, वो गिल्ट, ये स्ट्रेस, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होगा. एंड एक बहुत मेजर साइकिल ख़त्म हो रही है विद दिस 11/11 पोर्टल. ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक what all messages do we have for you guys. Let me just
सी आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो शायद से यू पीपल आर विद योर ट्विन फ्लेम, ओके, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो आप लोग, और आप में से काफ़ी लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज यू पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है. सो लेट्स रीड द मैसेजेस वन बाय वन. फर्स्ट यू गॉट द व्हील which says indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. I told you कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, ठीक है. इट कुड बी you choosing between your past person and this new person, या फिर एक एक ये indecisiveness ये भी हो सकता है that you're not being able to decide whether this person you are dealing with is actually your person or not, okay. but जो भी है I do feel that इस चीज़ की जो confusion है वो आपकी दिसंबर में end होगी for sure, ओके. दिसंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप में से काफ़ी लोगों के लिए बिकॉज इट फेल ऑन द कार्ड वर्ल्ड. तो बहुत मेजर साइकिल एक एंड होगी, ठीक है. एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है जो एंड होगी. देन यू गॉट लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. सो कंपोजर पे आया है. आई टोल्ड यू कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो or you people are feeling a bit overwhelmed or numb, not being able to connect with yourself, just do some grounding because it is highly needed. All right. Then you got grapes, time to go out and have fun. Now this is especially for those who are not being able to open their heart to love, ठीक है. या फिर आपके इमोशंस आते हैं एंड देन यू अगेन सप्रेस देम, ओके, और you just don't want to remove that wall, okay. So for that I think you need to go out and spend some time maybe with children, okay. NGO जाओ या कहीं पे भी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे you may feel a bit light, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम बच्चों के साथ होते हैं वहाँ पे वी कैन बी आवर सेल्व्स, ठीक है. वहाँ पे कोई वॉल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है. अच्छे अच्छे लोगों की वॉल टूट जाती है सम हाउ, चाहे थोड़ी सी टूटे बट होता है. देन यू गॉट द लैडर कार्ड, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, एंड यू गॉट द माइस कार्ड, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली. तो आप में से हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाना, ठीक है. लेकिन अब आप उन सब चीज़ों से निकल रहे हो. मे बी यू पीपल हैव बीन इन दैट विक्टिम मेंटालिटी और यू पीपल हैव बीन डीलिंग विद पीपल दोज हु बिलीव इन विक्टिम मेंटालिटी, जिनको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की आदत हो, विक्टिम मेंटालिटी की आदत हो. तो इन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो, ठीक है. इन सब चीज़ों से निकल के यू पीपल आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर पर्सनल हीलिंग, ओके. देन यू गॉट काइट, यू गॉट वेकेशन. हो सकता है कि आप इस पर्सन से वेकेशन पे मिलो एंड ये भी हो सकता है दैट यू पीपल में ट्रैवल. वापस से वेकेशन आया, द वर्ल्ड आया एंड यू गॉट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. डेफिनेटली देयर इज ट्रैवल फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज. हो सकता है कि आप लोग जब भी आपकी शादी हो या अगर आपकी शादी हो चुकी है जो भी, मे बी यू विल ट्रैवल विद योर पार्टनर, ओके. देयर आर हाई चांसेस दैट you will be traveling with your partner, and just because you are traveling with your partner doesn't mean there's no life purpose. I do feel that for few of you, you and your partner together have a life purpose, okay. जैसे कुछ लोग होते हैं कि मेरा एक इंडिविजुअल लाइफ पर्पस है, मेरे पार्टनर का एक हो सकता है लाइफ पर्पस है या नहीं, मतलब है. लेकिन एक होता है कि आप जो पेयर होता है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनका साथ में एक लाइफ पर्पस होता है. वो जो लोगों को वर्ल्ड को बताते हैं, दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड. दे आर हियर. हो सकता है दोनों ही स्टार सीड्स हैं जिसकी वजह से उनका साथ में एक लाइफ पर्पस है. बिकॉज यू गॉट द मैरिज. तो जो भी कोई गिल्ट है या किसी ने भी आपको डिसअपॉइंट किया है या पहले आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आई डू फील दैट यू गिवन अप ऑन रिलेशनशिप्स, या फिर जो एक प्रॉपर लेजिट रिलेशनशिप होती है उस चीज़ के ऊपर आई थिंक यू पीपल हैव बीन feeling a bit distressed about all this, that you may not find love, you may not find true love and stuff like that. So definitely there's marriage, okay, and it is going to be a beautiful connection. Then you got the hand. It says in need for help, assistance and guidance. So अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि जो भी conflict चल रहा है and if you think that you people are not being able to handle it, then please go and take help from someone. Go to your go-to person, okay, have pep talks with them.
यू कैन गो टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट, किसी के पास भी जा सकते हो आप. जस्ट गो टू देम एंड आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ ओके टू टेक हेल्प. ओके, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको ही हैंडल करना है या कुछ भी ऐसा. कूल. सो दैट्स इट, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रुप 2. Okay, so for group 2, for those who ever chose this crystal, the moon crystal, let's see what do we have for you guys. So first you got the magician card. Okay, I'll be laying the cards first. Then you got epiphany, that is see clarity. Then you got the Holy Spirit, that is expect miracles. Then you've got clear, cancel and release, courage and bravery. ये पता नहीं पटाखे कौन फोड़ रहे हैं. Then you got happy family, you got cornucopia, community, and you got victory. Let's see what messages do we have from here. So you got two of pentacles, you got the chariot, you got page of swords, and you got the star. Okay, तो सबसे पहले तो ये, आई थिंक दैट योर थर्ड आई चक्रा इज क्वाइट एक्टिव. ओके, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी. सो बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग, व्हाट यू पीपल आर विशिंग फॉर, व्हाट यू पीपल आर डिज़ायरिंग. बिकॉज जो भी आप सोचोगे, हो सकता है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचो, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो चीज़ अच्छी हो या ना हो, इट डिपेंड्स. ओके, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना हम जो भी करो, बिकॉज आप जो चीज़ भी क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन ईजिली क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ. ओके, you have everything that you need to create that dream of yours into reality. It's just that you need to take certain actions. Okay, or maybe you just need to be a bit more decisive. ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि कहीं ना कहीं you do have second thoughts, you do have certain doubts, and when you have doubts that means there's something fishy. Okay, either with you or with the entire situation. So just see that whatever you have been wishing for, whatever you have been manifesting is the right choice for you. All right, and it is going to be a right choice for you in the long term as well. Then you got the Holy Spirit. It says expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Now see, अगर आप चाहते हो ना कि आपके लिए ऐसे miracles हो जाएं, तो ऐसे नहीं होता. जब भी कोई fear भी होता है ना, तब भी वो मिरेकल नहीं होगा, बिकॉज जहाँ फियर होता है वहाँ पे प्यार की जगह नहीं होती है. राइट, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे सिर्फ प्यार होता है. देयर इज ओनली लव. ओके, वेयर देयर इज लव देयर इज फेथ. Okay, there's no space for fear, there's no space for second thoughts, doubts, indecisiveness. No, जहाँ पे वो आ गया, that means there's a block and you need to handle it. You need to see what it is. ओके, सो आई डू फील दैट आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी अ बिट मोर क्लियर एंड यू नीड टू यूज़ योर हार्ट इंस्टेड ऑफ योर माइंड, इंस्टेड ऑफ योर ब्रेन. एंड कुछ लोगों के लिए आई डू फील दैट यू नीड टू clear or release some people from your life, because I do feel that you people are dealing with someone who is not the right choice for you. Either this person is too stubborn or too toxic for you. हो सकता है ये बहुत immature हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो. just see how it resonates, because कहीं ना कहीं this person doesn't know how to balance their emotions. ठीक है, इनको
अपनी लाइफ को बैलेंस करना नहीं आता, तो जिन्हें अपनी लाइफ को बैलेंस करना नहीं आता, जिन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता, वो आपको खुश कैसे रख सकते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको थोड़ा करेज लगाना पड़े, ठीक है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू सेव गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस एनर्जी, बिकॉज ये बहुत ही, ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं ना, दीज पीपल आर वेरी चाइल्डिश, ओके, दीज पीपल आर वेरी इमेच्योर। सो सी वेदर दिस इज़ यू और दिस इज़ समवन यू आर डीलिंग विद। तो यू हैव टू रिलीज दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, and just you can work with Archangel Michael, because Archangel Michael will always help you to protect you. He will always protect you. He will always give you that courage to protect yourself from such evil forces or evil energy or toxic people or whatever you may want to call it, but definitely there's a high need, okay? So just, और हो सकता है कि आप लोगों का ऑरा भी अभी ऐसा हो रखा हो कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीड हो सकता है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी न किसी से आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड मुझे लग रही है। ऑलराइट देन, जैसे मैंने बोला दैट यू पीपल आर डीलिंग विद समवन जो थोड़े से इमेच्योर हैं, जिन्हें नहीं आता बैलेंस करना, जो अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना नहीं जानते हैं। सो दिस पर्सन, और हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो शायद से वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे पा रहे हूँ पहले, एंड नाउ दिस पर्सन मे थिंक दैट अब तो मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ या जो भी है, एंड दे मे वांट टू मेक थिंग्स राइट। और मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई देयर बेस्ट, वो अपने एफर्ट्स डालेंगे, और आपको हो सकता है आपको लगे कि आपकी विशेस पूरी हो गई हैं या आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है, बट जस्ट मेक श्योर दैट दिस इज़ द राइट विश ऑफ योर्स, दिस इज़ द राइट चॉइस ऑफ योर्स, ओके। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई डू थिंक कि आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। सो व्हेन क्राउन चक्रा गेट्स एक्टिवेटेड, देर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मिरेकल्स होना, ये सब चीज़ें होना, इट विल ये बहुत एक नेचुरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाता है जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। सो जस्ट वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। इफ़ यू कैन चैंट, ओम चैंट कर सकते हो आप, या कुछ भी ऐसा कर सकते हो। बट जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, जस्ट मेक श्योर कि ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे, और तब जब आप इन लोगों को अपनी लाइफ से हटाओगे, ठीक है, आपको करेज लगाना पड़ेगा। जब आप इन लोगों को अपनी लाइफ से हटाओगे तभी आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी, ओके, बिकॉज आप सोच भी नहीं सकते हो। समथिंग, आई डू फील दैट देयर इज समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दैट इज़ बियॉन्ड इल्यूजन राइट नाउ। आप शायद से सोच भी नहीं सकते हो कि आपके लिए क्या क्या होने वाला है, ओके। देन यू गॉट द फैमिली, कॉर्नुकोपिया, कम्युनिटी एंड विक्ट्री। हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली में कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग आने वाली हो, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के थ्रू किसी से मिलो या एक ओकेजन पे किसी से मिलो, और कुछ लोगों के लिए इट कुड बी यू डूइंग सम प्रोजेक्ट। हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट करो विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। हो सकता है कि ये सोसाइटी के लिए कुछ करना या जो भी। आई डू फील कि यहाँ पे एक देयर समथिंग रिलेटेड टू अ कम्युनिटी, अ ग्रुप प्रोजेक्ट या कुछ ना कुछ ऐसा। सो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप वाली जो चीज़ होती है वो भी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। आई थिंक यू विल बी लीडिंग हियर। इट्स नॉट लाइक लीडर वाला लीड करना, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश न्यू स्टार्ट फॉर यू, ओके, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ। एंड वहाँ से दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा ज्वाइन करने वाले हो, या हो सकता है आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आए या कोई चॉइस आए, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के साथ वर्क करना है, आपको कम्युनिटी के साथ वर्क करना है, और वहाँ पे मुझे लगता है आपको एक रिकग्निशन भी मिलेगी। यू विल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द टी लीफ।
let me just place the cards first. Okay. Okay, so first you got the moon. I told you that there's change in your life. हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा miracles एक्सपेक्ट करो, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करो, एंड ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपके हाथ में है. और ये जो चेंजेस होंगे, हो सकता है आप फुल मून या न्यू मून की साइकिल जब होती है स्टार्ट, तब आप इन चेंजेस को एक्सपीरियंस करो. ठीक है. देन यू गॉट द वाइन विच सेज सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. तो कुछ भी अगर ऐसा है दैट यू पीपल हैव बीन डाउटिंग, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सेकंड थॉट्स हैं या कुछ भी, गिव इट सम मोर टाइम बिफोर रीचिंग ऑन टू अ सर्टेन कंक्लूजन. गिव इट सम टाइम. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन निकालो उस पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में. देन यू गॉट फिंगर वार्निंग you of a problem either now or in near future, like I said. और ये सीधा सीधा clear cancel and release पे आया है. So definitely you need to release someone, या फिर कोई ऐसा जहाँ से आपको अपने आप को protect करने की need है. It could be a friend, it could be a family member, it could be someone from your work, कोई भी हो सकता है, but this person is kind of unhealthy for you. Then you got carriage which says a journey either physical or mental. हो सकता है कि आप लोग एक आई डू फील दैट फिज़िकल जर्नी अगर होगी तो हो सकता है कि कोई ट्रैवल करके आए आपसे मिलने के लिए या कुछ भी ऐसा, लाइक आई सेड दिस पास्ट पर्सन. या फिर हो सकता है ये जो मेंटल एनर्जी, मेंटल जर्नी है आपकी, दिस इज़ ऑल अबाउट यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, बींग असर्टिव, okay, maintaining those healthy boundaries whenever it is required. Then you got pineapple and you got fox. Now see, you got the reconciliation card and you got fox which says shrewdness and resourcefulness, especially in business. So business में हो सकता है, business में I do feel that you know, जो आपको जो भी सेकंड थॉट्स हो रहे हो कि ये एक ऑप्शन ठीक है या नहीं है, सो दिस कुड बी दैट. ओके, बट you will get that clarity soon. Okay, just seek more information because I do see that this is going to be that money path for you. Okay, it will give you victory, it will give you success. Then you also got reconciliation. तो हो सकता है या तो आप अपनी फैमिली में किसी से रिकनसाइल करो. ठीक है. हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स में से, इट कुड बी रीयूनियन फॉर अ लॉट ऑफ यू. और कुछ लोगों के लिए, लाइक आई सेड, कि आप किसी ज़िद्दी एक स्टूपिड इंसान से हो सकता है डील कर रहे हो सकता है ये आप भी हो. जस्ट सी हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. थोड़े स्टबर्न इंसान से, सो दैट पर्सन मे कम. Okay, and they may want to reconcile with you because यहाँ पे you got turkey as well which says, and pineapple सीधा clear cancel and release पे आया था. So you may have to leave this person. Okay, even though it may be a bit difficult for you, आपके लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है इस person को leave करना, but it is important for you. Then you got the turkey card which says someone is behaving stupidly, like I said, so just stay away from such people. And you got lily which says spiritual love, and you got forces working against you. So just जो भी, जैसे आप अगर हनुमान जी में बिलीव करते हो या अगर आप आर्कएंजल माइकल में बिलीव करते हो, कुछ भी ऐसा जो आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे. इफ़ यू बिलीव इन क्रिस्टल्स तो आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू डू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ओके, और लाइक आई सेड कि आप लोगों का जो क्राउन चक्र होगा वो एक्टिवेट हो रहा है या होगा या जो भी कह लो. ठीक है. तो आप God or universe is definitely showering a lot of spiritual love on you people. Okay, so just protect yourself from unhealthy people, unhealthy energies. Okay, and then you should accept valid criticism. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जो थोड़े stubborn हो, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि आप खुद हो सकता है कि किसी चीज़ में आप लोग ऐसे होते हो, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हो एंड आपको नहीं समझ आता है, आपको उस टाइम पे लगता है कि आप ही सही हो. तो ऐसा कुछ है अगर, सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग वैलिड criticism because there's no harm in it. All right, so that's it for today. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.